Good morning, students. So it's time for our IT class. So let us begin. In the last session, we got through this session which was related to describing an event. I hope you all have understood that session well. If you have some difficulties, I want you to ask those difficulties to me. In this session, there was an exercise which was given. I told you to complete that exercise. So I want every one of you to write this complete exercise in your copies with the correct options from these which are given below. So once you write all these answers, you have to take the photograph of it and send to me personally. Alright. Next, now we are beginning with our next session, that is session number 9, recounting an experience. Now, what recounting is? Recounting generally refers to some of the past events that have already happened, and we are retelling about those experiences. So, if we do something like that, when we retell an event that has already happened in the past, so that will be called as recounting. But the condition with this recount is that whenever you recount an experience, whenever you retell the event that has happened in the past, that has to be told in a proper sequence in which they have occurred. So that's it. That is the most important thing. You have to tell the events in the sequence in which they have occurred. If so, then only it will be called as a recount. Alright, so let us see what definition they have given over here. The purpose of a recount is to list and describe past events by retelling the events in the sequence in which they occurred. एज आई टोल्ड यू, जो सीक्वेंस होता है उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही आपको उन इवेंट्स को रिटेल करना होता है, तभी आप कहेंगे कि आप किसी एक एक्सपीरियंस को क्या कर रहे हैं, रिकाउंट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. अ रिकाउंट टेल्स अबाउट समथिंग दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट. सीधी सी बात है, रिकाउंट कर रहे हैं कोई चीज़ जो पास्ट में हुई है उसके बारे में फिर से बता रहे हैं. सो दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट, हैंस इट इज़ रिटन इन द पास्ट टेंस. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है तो आपको हमेशा क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको हमेशा पास्ट टेंस का यूज़ करना पड़ेगा. ऑलराइट, जैसे कि आई रैन, आई वेंट, तो इस तरीके के वर्ड्स का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा. नाउ whenever you want to recount something, so the things that can help you in recount are what has happened in that event, who was involved in that event, where that event took place, when that event took place, and what was the reason behind that event to occur. If you cover all these points, so you can make a proper recounting sentences if you cover all these points which are given over here, which are marked by green color. All right, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. आई बिलीव आप लोगों को रिकाउंट क्लियर हो गया होगा. क्या होता है रिकाउंट? किसी एक पास्ट में हुए इवेंट को रिटेल करना उस सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में वो हुए थे. अब चूंकि ये पास्ट में हो चुका है तो इसीलिए आपको सारे सेंटेंसेस पास्ट टेंस में ही लिखने होंगे यहाँ पर, या बताने होंगे. अब डिटेल्स रिकाउंट की क्या क्या इंक्लूड कर सकती हैं, तो वो इंक्लूड कर सकती है कि क्या हुआ था, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था, कहाँ पर ये इवेंट हुआ था, क्यों ये इवेंट हुआ था, और क्या कारण था इस इवेंट को करने का, है ना, कब ये इवेंट हुआ था. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक रिकाउंट के अंदर कवर की जाती हैं. ऑलराइट, आगे बढ़ता है. अ राइटर और स्पीकर यूजेज अ रिकाउंट टू टेल अस अबाउट अ स्टोरी और एन इवेंट. सीधी सी बात, अ राइटर और स्पीकर क्या कर रहा है, यूजेज अ रिकाउंट. क्यों रिकाउंट यूज़ करता है? जब कभी वो आपको किसी इवेंट के बारे में या किसी स्टोरी के बारे में बताता है. एज ऑलरेडी सेड, वो एक पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में होगा, तो इसीलिए उसको रिकाउंट कहा जाएगा. रिकाउंट्स आर यूजुअली गिवन इन द ऑर्डर दैट द इवेंट हैज़ अकर्ड. इट इज़ द सेम थिंग विच इज़ रिटन इन द पैराग्राफ दैट वी रेड ऑलरेडी. रिकाउंट्स कैन बी, अब यहाँ पर कुछ रिकाउंट्स के बारे में बताया हुआ है कि किन किन चीज़ों को रिकाउंट के अंदर काउंट किया जा सकता है. तो रिकाउंट्स कैन बी फैक्चुअल, सच एज न्यूज़ स्टोरी. न्यूज़ में आप जो स्टोरीज़ देखते हैं, न्यूज़ जो देखते हैं आप, तो वहाँ पर न्यूज़ में भी ज़्यादातर क्या बताते हैं, वो सारी इवेंट्स के बारे में बताते हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं. सो दे जनरली यूज ऑल द सेंटेंसेस इन द पास्ट टेंस ओनली. सेकेंड पार्ट इन्होंने बताया है रिकाउंट और क्या हो सकता है, तो रिकाउंट प्रोसीजरल भी हो सकता है. फैक्चुअल तो हो ही सकता है, न्यूज़ स्टोरी उसका एग्जाम्पल हुआ. प्रोसीजरल भी हो सकता है.
प्रोसीजरल जैसे कि मैंने अगर कोई चीज़ बनाई या कोई चीज़ बिल्ड करी, जैसे खाने की कोई चीज़ बनाई या कुछ और मैंने चीज़ बिल्ड करी है, कोई क्राफ्ट बनाया है, तो ऐसी कोई चीज़ अगर मैं बनाऊंगा तो उसको भी मैं एक सीक्वेंस में बताऊंगा। रीटेल करूंगा तो सीक्वेंस में रीटेल करूंगा। तो जब मैं सीक्वेंस में किसी चीज़ को रीटेल कर रहा हूँ, सो इट विल बी काउंटेड एज व्हाट, इट विल बी अ रिकाउंटिंग ऑफ समथिंग। Next, the third category that can be a personal recount, such as a family holiday or my opinion on a particular subject. So that all things will be counted under what, a recount. Now, again, we are given out some examples of recount. Let us see. बायोग्राफीज़ एंड ऑटोबायोग्राफीज़, आत्मकथा जिसको बोला जाता है, वो सारी जो होती हैं वो भी कहीं ना कहीं पास्ट टेंस में ही लिखी होती हैं। किसी के पर्सन के लिए लिखी जाती हैं, किसी पर्सन के बारे में लिखी जाती हैं, तो वो पूरे की पूरी उनकी लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं, तो वहाँ पर भी वो पास्ट टेंसेस में ही होता है। न्यूज़पेपर्स और टेलीविज़न न्यूज़ जो अपन रीड करते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा, एवरीथिंग विच इज़ इंक्लूडेड इन दैट इज़ इन पास्ट टेंस बिकॉज दैट इवेंट हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड. All right, letters and postcards, textbooks, and conversation with friends. These are all what? These are all explanations of a recount. All right, let us move further. Well-structured recount includes details of the event or topic and personal opinions. जो एक वेल स्ट्रक्चर्ड रिकाउंट होता है उसमें उस इवेंट के, टॉपिक के या किसी के पर्सनल ओपिनियंस का सारा कंटेंट होता है, ठीक है। ओरल जो रिकाउंट होता है, मैं किसी को रिकाउंट दे रहा हूँ, रिकाउंट कर रहा हूँ, किसी को कोई प्रेजेंटेशन है, सो दैट पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन कैन हैव अ टाइटल। बट अगर मैं किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहा हूँ, उसको किसी कन्वर्जेशन के बारे में, मेरे साथ जो इवेंट हुआ है उसके बारे में बता रहा हूँ, सो आई डोंट नीड टू अनाउंस आई डोंट नीड टू अनाउंस द टाइटल ऑफ दैट पर्टिकुलर कन्वर्जेशन. सो दिस इज समथिंग विच इज़ गिवन टू अस इन दिस पर्टिकुलर सेशन कि रिकाउंट क्या होता है. Again, now they are again they have given us a past continuous tense which is a grammar part. यहाँ पर बताया हुआ है कि past continuous tense क्या होता है. तो past continuous tense क्या होता है? A past continuous tense is what? It is an action that was happening at the time in the past. आज के समय में कल क्या हो रहा था, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो क्या कहलाएगा? Past continuous tense. I was eating food yesterday at this time. So this is what? This is an event that has already been occurred yesterday, but it was happening at a particular time, that is right now. तो वो क्या होगा? एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा. यहाँ पर कुछ पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं. दिस इज नथिंग न्यू फॉर यू, यू ऑलरेडी नो व्हाट पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज. ऑलराइट, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस के बीच में डिफरेंसेस इन्होंने बताया हुआ है, कैसे सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं. पहला दिया हुआ है आई एम वॉकिंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, मैं अभी चल रहा हूँ. आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रहा था, ठीक है. इधर पे दिया हुआ है टीना इज़ वॉकिंग, टीना वॉज वॉकिंग. तो यहाँ पर भी आप लोग इस एग्जाम्पल को देखकर समझ सकते हो कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है. ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने डिफरेंस बताया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस होता है. तो यहाँ पर आप इन दो लाइन्स में देख सकते हो. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब्स एन इवेंट दैट इज हैपनिंग प्रेजेंटली, व्हाइल द पास्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब्स एन इवेंट दैट वाज हैपनिंग एट अ टाइम इन द पास्ट. दिस इज क्लियर टू यू, आई बिलीव. ये काफ़ी ईजी है. पास्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस tense, there is nothing much which I need to explain to you. All right, now they have given us some sentences and they want us to identify those sentences that are in past continuous tense. So I think that is easy for you, you can do this. So just have a look at these 6 sentences and just solve it and take a look whether you can do or whether you can solve and get the answers which of the sentences are in past continuous tense. We are moving further. There is again one exercise which is given to us. They have given us some points, while all these points have to be combined, and what you need to do, you need to construct them into a paragraph. आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको ये सारे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन सारे पॉइंट्स का यूज़ करके आपको एक पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है. So again, this will be your task, this will be your homework. So you have to go through this particular points and you have to construct a complete paragraph of your own. आप लोगों को खुद से कुछ एक पैराग्राफ यहाँ पर बनाना है. Read the phrase in trip to a mall, fill in the blanks with appropriate phrases. Alright, यहाँ पर कुछ fill trip to a mall एक फ्रेज़ यहाँ पर दिया हुआ है, आपको खुद सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं. यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर इन्होंने आप लोगों को
सेंटेंसेस दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आप लोगों को इनका यूज़ कर कर इस पर्टिकुलर जो ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इस फिल इन द ब्लैंक्स में इनको फिल आउट करना है. सो दिस इज अगेन विल बी योर होमवर्क. सो you have to write these in your copies, and after writing this in your copies you have to take a screenshot or photograph of it and send to me personally. Again, there is one more assessment which is given to us. What you need to do is you have to fill in the blanks with the past continuous form of the verb which is given in the brackets. आप लोगों को अब पहला वाला और सेकंड वाला तो सॉल्व करके दिया हुआ है. थर्ड वाला आप देखो, वी डैश द मूवी फॉर द सेकेंड टाइम. ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन सेंटेंसेस को क्या करना है, आप लोगों को इन सेंटेंसेस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है. जैसे कि थर्ड वाले का क्या होगा, वी वर सीइंग द मूवी फॉर द सेकेंड टाइम. सिमिलरली यू नीड टू fill out all the sentences which are given over here. There are around 9 fill in the blanks that you are supposed to do. All right, so this is it for our today's class. All the exercise which is given over here and all the assessments which are given, all those you have to solve and write down in your copies. If you don't have this PDF, so you can find the PDF of this particular session in the description of this particular video. So you can download the PDF from there and you can go through that particular PDF. Okay, so this is it. Thank you students. See you in the next class.